Good morning, students. Welcome to online class of social science. Today we will study geography chapter 3 called Minerals and Power Resources. Page number 31, paragraph 2. Wind energy. Wind is an inexhaustible source of energy. Windmills have been used for grinding grain and lifting water since times immemorial. In modern time windmills, the high-speed wind rotate the windmill, which is connected to a generator to produce electricity. Wind farms having clusters of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes where strong and steady. Now come to the page number 32. Winds blow. Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain are noted for their wind energy production. विंड एक खत्म न होने वाला एनर्जी सोर्स है। प्राचीन समय से विंडमिल का यूज़ अनाज पीसने के लिए और पानी ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। इन मॉडर्न टाइम विंडमिल्स तेज गति से चलने वाली विंडमिल की ब्लेड्स को घुमाती हैं। विंडमिल एक जनरेटर से जुड़ी होती है जिस कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विंड फार्म्स में ऐसी कई विंडमिल्स होती हैं। कोस्टल रीजन्स और माउंटेन पासेस जहां तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, ऐसे विंड फार्म स्थापित किए जाते हैं। नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में विंड फार्म्स पाए जाते हैं। ये देश विंड एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे अग्रणी देश हैं। न्यूक्लियर पावर. Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. The greatest producer of nuclear power are USA and Europe. In India, Rajasthan and Jharkhand have large deposits of uranium. Thorium is found in large quantities in the monazite sands of Kerala. The nuclear power stations in India are located in Kalpakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Narora in Uttar Pradesh and Kega in Karnataka. न्यूक्लियर पावर यूरेनियम और थोरियम जैसे नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के एटम के न्यूक्लियाई में स्टोर होती है। जब ये एलिमेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर फिजन से गुजरते हैं तो न्यूक्लियर पावर उत्पन्न करते हैं। न्यूक्लियर पावर के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स यूएसए और यूरोप है। इंडिया में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के भंडार हैं। केरला की मोनोजाइट सैंड में थोरियम विशाल मात्रा में पाया जाता है। इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशंस तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान के कोटा के पास राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश के नरोरा और कर्नाटक के कैगा में स्थित है। Geothermal energy. Heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs. This heat energy can be used to generate power. Now come to the page number 33. Geothermal energy in the form of hot springs has been used for cooking, heating and bathing for several years. USA has the world's largest geothermal power plants, followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America. In India, geothermal plants are located in Manikaran in Himachal Pradesh and Puga Valley in Ladakh. अर्थ से प्राप्त होने वाली हीट एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। जैसे जैसे अर्थ के अंदर गहराई में जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। कभी कभी ये हीट एनर्जी हॉट स्प्रिंग्स के रूप में अर्थ की सरफेस पर आ जाती है। इस हीट एनर्जी का यूज़ पावर जनरेट करने में किया जा सकता है। हॉट स्प्रिंग्स के रूप में जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ कुकिंग, हीटिंग और बाथिंग में किया जाता रहा है। यूएसए में वर्ल्ड के लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं।
न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइंस और सेंट्रल अमेरिका में जियोथर्मल पावर प्लांट्स है। इंडिया के हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख की पूगा वैली में जियोथर्मल पावर प्लांट्स है। टाइडल एनर्जी, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी. Tidal energy can be harnessed by building dams at narrow. Now come to the page number 34. Openings of the sea. During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France, and the Gulf of Kutch in India have used tidal mill farms. टाइड से समुद्र के ज्वार से बनाई जाने वाली एनर्जी को टाइडल एनर्जी कहा जाता है। समुद्र की नैरो ओपनिंग्स पर डैम बनाकर यह एनर्जी प्राप्त की जाती है। हाई टाइड्स के समय टाइड्स की एनर्जी का यूज़ डैम में स्थित टरबाइन को घुमाने में किया जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। रशिया, फ्रांस और इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ में विशाल टाइडल मिल फॉर्म्स हैं। बायोगैस और ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड plant and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. The organic waste is decomposed by bacteria in biogas digesters to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide. Biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produces huge amount of organic manure each year. Organic waste जैसे कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स, गोबर और किचन वेस्ट को गैसियस फ्यूल में बदला जा सकता है, जिसे बायोगैस कहते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट बैक्टीरिया के द्वारा बायोगैस डाइजेस्टर में डिकम्पोज होकर बायोगैस का निर्माण करते हैं। बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होती है। बायोगैस कुकिंग और लाइटिंग के लिए एक एक्सेलेंट फ्यूल है और साथ ही बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑर्गेनिक खाद का भी निर्माण होता है। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली. ईच वन ऑफ us can make a difference by not wasting energy. Energy saved is energy generated. Act now and make brighter energy future. एनर्जी सभी जगह उपलब्ध है, लेकिन इस एनर्जी को प्राप्त करना बहुत कॉस्टली और कठिन है। हम में से प्रत्येक को एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एनर्जी की बचत ही एनर्जी का उत्पादन है।